My dear friends, today we're meditating on the verse which is in Isaiah 41:15. प्यारे दोस्तों, आज हम मनन करने जा रहे हैं यशाया 41वां अध्याय वचन 15 पर। I will make you into a threshing sledge, new and sharp with many teeth. मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। My dear friends, you may be wondering what a threshing sledge is. दोस्तों, शायद आप सोचते होंगे कि ये दावने वाला यंत्र क्या है। During those times, they used to use this tool to separate the grain from all the impurities like straw and other chaff and other materials. उन दिनों में इस यंत्र का वो उपयोग करते थे अनाज साफ करने के लिए कि अनाज के दाने में से सरकंडे और छिलके अलग कर सकें। It needed to be very sharp to cut through all the impurities and only send the whole grain to the other side. और ये बहुत ही तेज हथियार होता था ताकि ये एक एक दाने को बिल्कुल साफ करके दूसरी तरफ भेजता था। So God says, I will make you into a threshing sledge. परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे दावने वाला यंत्र बनाऊंगा, Sharp enough to cut through all the impurities. इतना तेज कि सारी अशुद्धता को दूर करे। So what are the impurities in our life? तो हमारे जीवन में कौन सी अशुद्धता है? It may be certain decisions that are very tempting, शायद कुछ निर्णय हो सकते हैं जिससे हमारी परीक्षा हो, mistakes that we may be about to make, गलतियां जो शायद हम करने वाले ही हैं, sin that is so tempting, ऐसा पाप जो बहुत परीक्षा लेता हो, pleasures and desires of this world. इस संसार का ऐशो आराम और अभिलाषाएं, All the things that we consume, this sledge will be able to separate good and bad. जो कुछ भी हम चाहते हैं जो हम में है, ये दावने वाली जो चीज है ये भले और बुरे को अलग कर देगी। When we are filled with the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा से भरते हैं, God will enable us to cut off all the impurities from our life, परमेश्वर हमें योग्य बनाएगा कि हमारे जीवन से सारी अशुद्धता को निकाल दे, so that we will have a complete, pure and holy life, ताकि हमारे पास एक परिपूर्ण, शुद्ध और पवित्र जीवन हो, free from all the sin, the pleasures and the desires of the world. जो संसार के सारे पाप और अभिलाषाओं से पूरी तरह से आजाद हों, And have a clean, complete and holy life. और हम शुद्ध, पवित्र और परिपूर्ण जीवन पाएं। Today God is making you sharp. परमेश्वर आज आपको चोखा बना रहा है। When we use a knife, we don't use a blunt knife. जब हम चाकू उपयोग करते हैं तो बिना धार वाला चाकू नहीं उपयोग करते, Otherwise it won't cut through the object. नहीं तो वो उस चीज को काट नहीं पाएगा, It will not be useful for us. वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, It will not give a clean output. वो सफाई से काम नहीं कर पाएगा। Only when the knife is sharp, केवल चाकू जब तेज होता है we will be able to separate the object तभी हम उस चीज को अच्छे से काट पाते हैं, and get a clean cut. सफाई से काट पाते हैं। In the same way, God is making you sharp today, इसी तरह से परमेश्वर आज आपको चोखा बना रहा है, so that you can separate all the bad things from the good, ताकि आप अच्छी चीज को बुरी चीज से अलग कर सकें, to have a clean, complete and contented life. ताकि हमारा शुद्ध, परिपूर्ण, संतुष्ट जीवन हो। Today shall we receive this for our life. आइए अपने जीवन के लिए आज इसे हम ले लेते हैं। Today, Lord, thank you for making us sharp and a threshing sledge, धन्यवाद प्रभु, आज तू हमें चोखा और दावने वाला यंत्र बना रहा है to separate all the impurities from our life, Lord. कि हमारे जीवन से सारी अशुद्धता को दूर कर सके। Help us to cut away all of the bad relationships, the friendships, मदद कर कि हम बुरी संगत को, बुरी दोस्ती को अलग कर सकें, the pleasures, the desires of the world, संसार के ऐशो आराम और इच्छाओं को, everything that is stopping us from getting close to you, हर एक बात जो हमें तेरे करीब आने से रोकती है। and help us to come out like a complete grain, Lord. मदद कर कि प्रभु हम परिपूर्ण दाने के जैसे बाहर आएं, Clean, pure and holy, साफ, शुद्ध और पवित्र, a complete product, परिपूर्ण उत्पादन, to be a testimony of your goodness, ताकि तेरी भलाई की गवाही हो, to be a blessing to the people around us, हमारे आसपास के लोगों के लिए आशीष हो, and let us see and reap the benefit. हम लाभों को देखें और उसकी कटनी करें। Today, thank you for purifying us, आज हमें शुद्ध करने के लिए धन्यवाद, for refining us, हमें शुद्ध करने के लिए, making us sharp हमें चोखा करने के लिए and keeping us focused, Lord. और हमें केंद्रित करने के लिए प्रभु Bless your children today अपने बच्चों को आज आशीष दे। and equip them for every good work for today. आज इन्हें हर एक भले काम के लिए तू तैयार कर। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मांगती हूँ, Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।
इस मौके को मिस ना करें. தவற விடாதீர்கள். ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಇದು ನಷ್ಟಪಡುತ್ತದೆ. மிஸ் செய்யకండి. हाँ, ये एक ऐसी सभा है जिसको आपको 2025 में नहीं चूकना चाहिए. Your sorrow will turn into joy. बेत्सदा आशीष सभा रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे. And every lump, every boil, every tumor disappear right now in Jesus' name. मेरा ये कान का सामने में बॉल निकला था 2 साइड में और बहुत ही बड़ा हो गया था. जैसे ही प्रेयर कंप्लीट हो गया तो मैंने टच किया तो ये ऑलरेडी सूख गया था. Big boil was there. Yeah, big ball was there. Now it's completely gone. Absolutely nothing. Thank you, Jesus. We welcome you all on July 13th. 13 जुलाई को हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं. July 13th is a special day for me. 13 जुलाई तो मेरे लिए बहुत ही विशेष दिन है. That day the Lord anointed me with the Holy Spirit. I know God is going to fill you too. इसी दिन परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया और मैं जानती हूँ आपको भी भर देंगे. It is going to be a great day. ये तो बहुत ही महान दिन होगा. There will be deliverance. और छुटकारा होगा. Where the Spirit of the Lord, there is deliverance. जहाँ परमेश्वर की आत्मा है वहाँ पर छुटकारा है. Come and be blessed. आकर आशीष पाइए. We'll wait to pray with you. हम आपके साथ प्रार्थना करने का इंतजार कर रहे हैं. Come with all your friends and family. अपने सभी मित्रों और परिवारों के साथ में आइए. बेत्सदा आशीष सभा रविवार 13 जुलाई दोपहर 2 बजे. स्थान डॉक्टर DGS दिनकरन सेंटर, कारुण्या नगर, कोयम्बतूर. गांधीपुरम बस स्टैंड और कोयम्बतूर रेलवे स्टेशन से कार्यक्रम स्थल तक विशेष बसें चलेंगी. आवास और यात्रा सहायता के लिए विशेष रूप में अन्य राज्यों या जिलों से आने वालों के लिए कृपया संपर्क करें 9487846601. एक परिवार के रूप में आए. Precious Daptorlin Shadap, I wish dear beloved daughter Dakir Mikalin a happy birthday. God bless you. बहुमूल्य बहन दापडोरलिन शडब, आपकी प्रिय बेटी डाकिर मिकालिन को मैं जन्मदिन की बधाई देता हूँ. जन्मदिन मुबारक हो. परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे. According to Haggai 2:19, from this day on I will bless you, says the Lord. हगई 2:19 से परमेश्वर आशीषित करे, जहाँ वचन कहता है, क्या अब तक बीज खत्ते में है और अब तक दाखलता और अंजीर और अनार और जलपाई के वृक्ष नहीं फले, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा. Father, bless dear Dakar Mikalin and happy Larissa with wisdom, divine empowerment and a golden future and a blessed year, Lord. प्यारे परमेश्वर, डाकिर मिकालिन और हाफी लरिसा के लिए दुआ करते हैं. परमेश्वर उन्हें बुद्धि दे, परमेश्वर ये सामर्थ्य दे और उज्जवल भविष्य दे. खुदावन ये वर्ष आशीष का वर्ष ठहरे. Bless Daptorlin and Bunkerlag with an own house and blessing in the family. Let the financial blessings be poured upon them and let them have all the joy of heaven, nothing lacking. In Jesus' name. डबडोलिन और बंकर लैंग को परमेश्वर अपने स्वयं के मकान से आशीषित करे और परिवार में आशीष दे. खुदा आर्थिक आशीषें उनके ऊपर उंडेल दी जाए. परमेश्वर स्वर्गीय खुशियों को उनके जीवन में उंडेल दे. परमेश्वर कोई भी कमी घटी ना हो, यीशु के नाम में. Amen. God bless you. Precious Sister Tai Rodo, thank you so much for your thank offering, which is a blessing to millions of people. बहुमूल्य बहन ताय रोडो, आपके धन्यवादी भेंट के लिए धन्यवाद, जो लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरी है. According to Psalm 84:11, the Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those whose walk is blameless. भजन संहिता 84:11 के अनुसार परमेश्वर आशीषित करे, जहाँ वचन कहता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है. यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छा पदार्थ रख ना छोड़ेगा. Father, bless our dear sister with good health and blessing in the family. परमेश्वर हमारी प्रिय बहन को आशीष दें, अच्छी सेहत दें और परिवार में आशीषों को दें. Bless Tai Nayana with healing. Let her be strong in the spirit, strong in the mind.
in the name of Jesus. डायना को चंगाई से आशीषित करे, आत्मा में और मस्तिष्क में परमेश्वर बलवंत हो जाए यीशु के नाम से। Bless the family members with good health and all the joy of heaven, Lord, in Jesus' name. परिवार के हर एक सदस्य को अच्छी सेहत और स्वर्गीय आनंद से आशीषित करे यीशु के नाम में। Amen. God bless you.